اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین السلام علیکم میں منیر شاکر۔ کیا قرآن اپنی بات سمجھانے کے لیے کسی کا محتاج ہے؟ یہ اپنی بات کیا نہیں سمجھا سکتا؟ قرآن کیا ہے؟ یہ تو اللہ کی باتیں ہیں، اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ دوسرے بندے سے بات کرے تو امکان ہے تو وہ اپنی بات نہ سمجھا سکے۔ جیسے میں بات کر رہا ہوں، ممکن ہے کہ میں اپنی بات آپ کو نہ سمجھا سکوں، جو کہنا چاہتا ہوں وہ نہ کہہ سکوں، یہ اس کا امکان ہے۔ سب لوگوں کے ساتھ ایسا امکان ہو سکتا ہے، مگر کیا اللہ کے ساتھ یہ امکان ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بات سمجھا نہ سکے؟ اس کو سمجھانے کے لیے کسی اور چیز کا سہارا لینا پڑے، بندہ کسی اور کا محتاج ہو جائے، کسی اور کا محتاج ہو جائے تو پھر کیا کہیں گے ہم اسے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا، میں نے تصریف آیات کو پھیر پھیر کر بیان کیا ہے تاکہ تم بات کو سمجھ جاؤ۔ اس کی پھر کیا ہے؟ حکمت رہ جاتی ہے، ضرورت رہ جاتی ہے کہ جب کسی اور نے اس بات کو سمجھانا ہے، کوئی اور کو غیر نہیں ہے، میری مراد سیدھی سی ہے نبی کی۔ نبی کا مقام بے شک بہت ہے، اس پر بھی بات انشاءاللہ ہم کریں گے۔ یا اب سمجھے، جو اب ہمارے سامنے جو نبی کی باتیں آئی، اصل مسئلہ یہ ہے، پرابلم یہ ہے، وہ کس طرح آئی ہیں اس پر نہیں ہم دیکھتے۔ وہ منسوب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اور ان کو ہم نے یقینی مان لیا۔ ان کو یقینی مان کے ہم نے کہا کہ ان کے بغیر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب اس پر پس منظر میں آپ ذرا دیکھیں کہ قرآن کیا جواب دیتا ہے، اپنی وضاحت وہ کس طرح کرتا ہے۔ کہ قرآن کے اندر ہی کیا اگر سب کچھ مل جائے، اگر قرآن یہ دعویٰ کرے کہ میرے اندر سب کچھ ہے، میں نے اللہ کہے کہ میں نے سب کچھ اس میں بیان کر دیا ہے، تو پھر ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت کیوں ہے؟ اور طرف جائیں گے اس کو سمجھنے کے لیے تو بات بگڑ جائے گی، بات خراب ہو جائے گی۔ قرآن کہتا کہ اس میں سب کچھ ہے، میں نے سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ اگر نہیں ہے، اگر نہیں سمجھا سکتا اللہ تعالیٰ، یہ قرآن نہیں سمجھا سکتا، تو پھر یہ تو ایک نقص ہوا۔ کیا آپ اس کو مانتے ہیں کہ یہ نقص؟ اگر محتاج ہے قرآن اپنی بات سمجھانے کے لیے اور اپنے بیان کرنے میں، پھر تو نقص ہوا۔ تو قرآن تو نقص سے پاک ہے۔ میں یہ محتاجی والی بات یا سب کچھ ہی قرآن میں ہے، یہ دعویٰ، اس کے لیے میں آپ کے سامنے صرف تین آیات قرآن پاک کی رکھتا ہوں، بہت ہی واضح ہیں، اس میں ہمیں کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں رہتی، بالکل نہیں رہتی۔ تو وہ میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں کہ قرآن اس باب میں کیا کہتا ہے۔ یہ سب کچھ ہی قرآن میں ہے۔ نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ نبی کا کام اس پر عمل کرنا ہوتا ہے، عمل کر کے دکھانا ہے۔ نبی نے بھی اسی حکم کی اتباع کرنی ہے، اس حکم میں کمی بیشی نہیں کر سکتا نبی، اس کی اتباع کرنی ہے۔ ایسا کیوں کرنا ہے؟ قرآن کسی جگہ رکھ دیا جاتا کسی پہاڑ پر، یا کیا مطلب نبی نے اس کی پیروی کر کے دکھانی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کل کلاں کوئی بندہ یہ نہ کہے اللہ سے کہ یہ تو قابل عمل چیز ہی نہیں تھی، ہم کس طرح عمل کرتے؟ تو ان کے جواب کے لیے اللہ اتنی منطق سے بات کرتا ہے، یقین جانیے میری تو سوچ جواب دے جاتی ہے۔ اس بات کا بھی جواب اس وقت کوئی بندہ کہے یہ تو قابل عمل ہی نہیں ہے، تو اللہ کہے گا کہ اس بندے نے عمل کر کے تمہیں دکھایا یا نہیں دکھایا؟ اس بندے نے عمل کر کے دکھایا، جو کہا اس کو نافذ کیا، اس کے نتائج بھی سامنے آئے۔ یہ بھی بتایا اس بندے نے جو لاہ عمل دیا
उस पर अमल किया, अमल करके फिर उसके नतीजे भी अल्लाह ताला हुक्म के बताता है कि इसका नतीजा ये निकला, वो नतीजा भी निकल के सामने आ गया। अंतमुल आलाउना इन कुंतुम मोमिनीन, हाँ जी, वो नतीजा सामने आ गया। तो फिर ये अमल का नतीजा है, बताने में कोई कमी नहीं कुरान के अंदर, कुरान ने बता हर चीज दी है। अब मैं ये चीज बताने के लिए आपके सामने 3 आयत, पहली आयत सूरत रूम की, वलकद दर्रबना लिन्नासि फी हाज़ल कुरान मिन कुल्लि मसल वाला इन जेता हम बे आयातिल्ला यकूलन्नल्लज़ीना काफरू इन अंतुम इल्ला मुब्तिलून। इसका तर्जमा, बेशक हमने इस कुरान में लोगों के सामने कुल मिसालें बयान कर दी हैं। भाइयों गौर करें लफ्जों पर, इस कुरान में कुल्ले मसाले, बेशक हमने इस कुरान में लोगों के सामने कुल मसाले बयान कर दिए हैं, आप इनके पास कोई भी निशानी लाएं, ये काफिर तो यही कहेंगे कि तुम बिल्कुल झूठे हो। इसने ब्रैकेट में लफ्ज लिखा है कि तुम बेहुदा गो हो। तर्जमा ये सऊदी अरब से जो तर्जमा आता है वो मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ। बेशक मेरा मकसूद जो है पहले वाला, बेशक हमने इस कुरान में लोगों के सामने कुल मसाले बयान कर दिए। अब क्या मतलब नहीं आप इसका, इसकी पिछले वाली आयत का, बाद वाली आयत का, सहको सबाक का, शान नजूल का, मुझे तो नहीं समझ आई कि ये कितनी वाज़ेह बात है। अल्लाह ताला ने बेशक हमने इस कुरान लफ्ज नाम दिया, नज़ल से भी हम कोई और मतलब ले लेते हैं, हमने वही को और हदीस को भी वही बना दिया, उसको भी नज़ल ना कह दिया, वो भी ना अल्लाह की तरफ से नाज़ल शुदा है। चले, यहाँ तो कुरान का लफ्ज है। बेशक हमने इस कुरान में लोगों के सामने कुल मिसालें बयान कर दी। सूरह रूम 58 58 नंबर आयत। अब और आयत सूरह अनकबूत, इसकी 51 नंबर आयत, 51 नंबर। अवलम यकफिहिम अन्ना अनज़लना, पहला ही लफ्ज, अवलम यकफिहिम अन्ना अनज़लना अलैकल किताबा युतला अलैहिम इन्ना फी ज़ालिका लिरहमतम व ज़िक्रा लिकौमिन युमिनून। मेरे दोस्त ने कहा कि ये तो मोजज़ात के बारे में है, इसकी पिछली आयत पढ़े, वो मोजज़े मांग रहे हैं। बेशक ऐसी बात है, लेकिन अगली आयत, वो आयत मुकम्मल होगी, वो आगे चल नहीं रही, मुकम्मल हो गई, अगर नई आयत शुरू हुई, वाज़े बात, हर चीज का जवाब दे। क्या कहा, क्या इन्हें ये काफी नहीं, वो उन्होंने पहली आयत का तर्जुमा, उन्होंने कहा कि इसमें कुछ निशानियां मौजूदात इसके रब की तरफ से क्यों नहीं उतारे गए। आप कह दीजिए कि निशानियां तो सब अल्लाह ताला के पास हैं, मैं तो सिर्फ खुल्लम खुल्ला आगाह कर देने वाला हूं। आगे ये नहीं कहा कि ये मौजज़ा है कुरान पाक, इसकी आयात भी जो है, ये आयात भी मौजज़ा है। आयत की बात हुई ना, निशानी, आयत भी मौजज़ा है। आयत अरबी, ये निशानी क्या अरबी आयत ही है ना, नहीं, बात दो टोक की। क्या इन्हें ये काफी नहीं, आगे पूरा तर्जुमा देखिए आप, कि हमने आप पर किताब नाज़िल फरमा दी जो इन पर पढ़ी जा रही है। पूरी किताब की बात की, सिर्फ उनकी उस बात का जवाब नहीं दे दिया, उसका जवाब भी आ गया जो इन पर पढ़ी जा रही है। इसमें रहमत भी है और नसीहत भी है उन लोगों के लिए जो ईमान लाते। अब है सिर्फ उतनी बात का ही जवाब, पूरी किताब की बात की है। और क्या कहा, क्या ये काफी नहीं है, अल्लाह तुम्हारे लिए काफी नहीं है, क्या अल्लाह का कलाम तुम्हारे लिए काफी नहीं है। क्या क्या जवाब दिया जाए, ये सब कुछ इसमें है, जो नहीं है उसके पीछे ना पड़ो। वो मेरे पास अगर हवाला नजर आ गया तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। सूरह नहल, सूरह नहल की 89 नंबर आयत, सूरह नहल की 89 नंबर आयत। इसका मफहूम मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूँ, बात लंबी ना हो जाए। ये वो उसी तर्जुमे से आप खोल के इसको पढ़ लेना। और जिस दिन हम हर उम्मत में इन्हीं में से उनके मुकाबले पर गवाह खड़ा करेंगे,
और तुझे इन सब पर गवाह बनाकर लाएंगे। ये बात हो गई। आगे, हमने तुझ पर यह किताब नाजिल फरमाई जिसमें हर चीज का शाफी बयान है। किसे कहेंगे शाफी बयान है? काफी शाफी, शाफी जवाब है आपका, तसल्ली बस तशफ़ी कर दी है आपने ऐसा जवाब दिया है, यही होता है ना। जिसमें हर चीज का शाफी बयान है और हदायत और रहमत और खुशखबरी है मुसलमानों के लिए। ये सूरह नहल की 89 नंबर आयत है। मेरे भाइयों, एक और मेरे पास में जो बात कुरान में नहीं उनके मतलब ना पूछा करो। ये मायदा की 101 नंबर आयत है। मैंने अर्ज किया ना कि सब कुछ कुरान में है, जैसा कि ये आपके सामने मैंने 3 आयात भी अर्ज कर दी। अल्लाह कह रहा है कि सब कुछ हमने इसमें बयान कर दिया। जिसकी आपको जरूरत है, जिसके तहत चलने से आप सलामती वाली जिंदगी गुजार सकते हैं, वो हर चीज इसमें मौजूद है, ये बात की गई है। और जिसका जिक्र नहीं है उसके पीछे ना पड़ो, उसके पीछे ना पड़ो। उसके बारे में अगर आपने जो फैसला करना है, आप बामशावरत से बैठ के फैसला कर लो। कुरान को सामने जरूर रखो, वो उसके खिलाफ ना हो। देखिए, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट तशरीह करती है किसी शिक की, असम्बली बना देती है, तरमीम कर देती है, तो वो इसकी तशरीह करती है कि ये पहले से किसी कानून के खिलाफ तो नहीं जा रही, ये इंसानी हकूक के खिलाफ तो नहीं जा रही, ये जो इन्होंने तरमीम की है। तो ये बात है कि ये जो आपने काम करना वो देखें कुरान के खिलाफ तो नहीं है। अगर नहीं है तो ओके फाइन, आप करें वो काम। या आप समझते हैं कि उसका जिक्र अगर कुरान में नहीं है, ये बात है। यही बात आपके सामने रखना चाहता था मेरे भाइयों, कि कुरान किसी चीज का मोहताज नहीं है। इसको समझने के लिए कुरान ही काफी है, इसमें हर चीज का बयान आ गया है। हमने आसान रास्ते ढूंढ लिए हैं इधर उधर जाने के, और क्या कहा जाए, जब हम और राहें निकालनी और दीन पैदा कर लिए, फिर उनको वो तो कुरान उनकी तायद नहीं करेगा। उनके लिए तो आपको फिर रवायात की तरफ जाना पड़ेगा, हदीसों की तरफ जाना पड़ेगा, फिर आपको बताना पड़ेगा हदीसें भी वही हैं, हदीसें भी अल्लाह की तरफ से नाज़िल शुदा हैं और ये दीन में हुज्जत है, सारा कुछ कहना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ इतनी बात बताना मकसूद थी कि कुरान क्या बताता है अपने बारे में, कि इसके अंदर क्या है। मैं नहीं कहता मेरे भाइयों, ये मैंने 3 हवाले दिए, आप खुद पढ़ लें, इनको देख लें। वो कह रहा है मैंने हर चीज इसमें बयान कर दी, कोई चीज नहीं छोड़ी है कुरान में। बस मेरे भाइयों, मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।